રામ કબીર સૌને મીઠા સબ સૌ બોલીએ सुख उपजत चहूँ और वसीकरण ही मंत्र है तजी दे वचन कठोर कबीरा तजी दे वचन कठोर बड़े भये सौ क्या भये जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागत यति दूर कबीरा फल लागत यति दूर। मुझे मिला कबीर जी का ज्ञान ए राम रस पीने से मुझे मिल गया सतसंग रंग ए राम रस पीने से क्या पीवे कोई क्या पीवे मुझे मिला कबीर जी का ज्ञान ए राम रस पीने से प्रीत लगी मेरे सदगुरुदेव से ध्यान लगा सेवा में तब से नाता जोड़ा सदगुरुदेव से कम होने लगी मांग प्रभु से एक ऐसा बन गया मन ए राम रस पीने से मुझे मिल गया सतसंग रंग ए राम रस पीने से क्या पीवे कोई क्या पीवे मुझे मिला कबीर जी का ज्ञान ए राम रस पीने से सतसंग साबू जो मिल जाए मन से सब दुख दूर हो जाए सपने अब तो सच बन जाए गुरु चरण में जीवन बीते एक ऐसा बन गया दिल ए राम रस पीने से मुझे मिल गया सतसंग रंग ए राम रस पीने से क्या पीवे कोई क्या पीवे मुझे मिला कबीर जी का ज्ञान ए राम रस पीने से जीवन की सब याटुई गूटी पल में गुरु जी ने निकाली राम नाम का दिया दिखाया जीवन मेरा धन्य बनाया एक ऐसा बन गया तन ए राम रस पीने से मुझे मिल गया सतसंग रंग ए राम रस पीने से क्या पीवे कोई क्या पीवे मुझे मिला कबीर जी का ज्ञान ए राम रस पीने से मुझे मिल गया सतसंग रंग ए राम रस पीने से। राम कबीर। સૌને રામ કબીર. ઓમ શ્રી સદગુરુ કબીરાય નમઃ. આપ સૌ ભક્તજનોમાં વસેલ કબીરના રામ આત્મારામને સપ્રેમે વંદન. શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ યુએસએ તથા સર્વે ચેપ્ટરો અને સર્વે ભક્ત સંસ્થાઓના સેવાભાવી સેવકો તરફથી આજના કબીર વિઝડમ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર, ફેસબુક લાઈવ અને સમય મળીએ યુટ્યુબ પર જોનાર
સર્વે કબીર પ્રેમી ભક્તજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરતા આનંદ અનુભવું છું. કાર્યક્રમની શરૂઆતનું ભજન સલાઈના કેન્સાસથી શ્રીમતી મીનાક્ષીબેન હર્ષદભાઈ ભક્તે સંભળાવ્યો. મુझे मिला कबीरजी का ज्ञान, मुझे मिल गया सत्संग रंग, ये राम रस पीने से. ખૂબ જ સુંદર ભાવ રહિત ભજન એમણે સંભળાવ્યું. થેન્ક યુ મીનાક્ષીબેન. રામ કબીર આપણને તેમણે ભાવ વિભોર અને કબીરમય બનાવી દીધા. હવે સમાજ આપનો ખૂબ ખૂબ આભારી છે. આજનો વિષય કયો છે? ઓકે, આ સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની વિથ યોગા તે વિષય પર આપણે વિડીયો સત્સંગ આપણે સાંભળીશું. હવે સમય મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે આ કાર્યક્રમને સમય પણ સમાપ્ત કરીશું. એટલે આજનો આપણા રેકોર્ડેડ જાણીતા યુવાચાર્ય પૂજ્ય સ્વામી શ્રી અભયદાસજી મહારાજે સધર્ન કેલિફોર્નિયામાં કરેલ સત્સંગોમાંનો એક કનેક્શન બિટવીન ડિવિનિટી એન્ડ યોગા પાર્ટ 2 તેમનો વિડીયો પ્રેઝન્ટેશન કરીશું. ભાગ 1 આપણે આગળ સાંભળેલો જ છે. સમય મર્યાદાને ધ્યાનમાં લઈને આપણે આ સત્સંગ કરીશું. વિશ્વવ્યાપી ભક્ત સમાજમાં મૃત્યુ પામેલ સૌ સ્વજનોના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરીએ. જીવન મૃત્યુના આ ઘટનાક્રમમાં આપણા સ્વજનોના મૃત્યુનો ખાલીપો દૂર કરવા તેમના પરિવારજનોને શક્તિ મળે, સદગતની આગળની યાત્રા સરળ અને સુખદ રહે તેવી સદગુરુને પ્રાર્થના. સધર્ન કેલિફોર્નિયાની તેમની યાત્રામાં મીરાબાઈ, ભક્તિપથ, કબીર, નોબેલ ટ્રુથ ઓફ બુદ્ધા, રિફ્લેક્શન ઓફ કર્મા, લેટ્સ બી સ્પિરિચ્યુઅલ, રામ, હાઉ ટુ બી ભક્ત જેવા આધ્યાત્મિક વિષયોથી ભક્તજનોને આધ્યાત્મિક રંગે રંગી દીધા હતા. બીજું કે શ્રી રામકબીર ભક્ત સમાજ ઓફ યુએસએ તથા અન્ય કબીર સંસ્થાઓમાં આ માસમાં જેઠ સુદ પૂનમ 22મીએ આપણે સૌ કબીર જયંતિ સદગુરુનો પ્રાગટ્ય દિનને સૌ સખી મંડળો તથા બીજા ભજન મંડળો આપણા સદગુરુના ભજનો ભાવથી ગાઈને આપણે ઉજવણી કરીશું. ભારતમાં 15મી સેન્ચુરીમાં ભક્તિ મૂવમેન્ટના પાયોનિયર્સમાંના એક એવા આપણા સદગુરુ કબીર સાહેબ, ગુરુ રામાનંદ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, ગુરુ નાનક, રવિદાસ, મીરાબાઈ જેવા તે સમયના સંતોની સાથે રહી આ આધ્યાત્મિક ચળવળ તેમણે ચલાવેલી. કબીર બીજકમાં બતાવેલ પ્રમાણે સત્ય, અહિંસા, એકતા, એક ઈશ્વર અને વિશ્વ બંધુત્વ જેવા માનવીય સિદ્ધાંતોની સાથે સેવા, દાન અને તે સમયના લોક રીતિ રિવાજો, માન્યતાઓની ગેરસમજ નિડરતાથી સાખીઓ અને ભજનોના માધ્યમથી તેમણે દૂર કરેલી. વિશ્વવ્યાપી સૌ ભક્તજનો હાલની કબીર જયંતિ ખૂબ જ ઉત્સાહ ઉમંગથી ઉજવે, આધ્યાત્મિક યાત્રા આગળ લઈ જાય તે માટે સમાજ તરફથી સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. તો હવે આજના વિડીયો સત્સંગ તરફ જઈએ. યુવાચાર્ય અભયદાસજીનો પરિચય તથા તેમની સિદ્ધિઓ ઘણીવાર આ કાર્યક્રમમાં બતાવેલી હોય, ફરી તે તરફ ન જઈએ અને આપણે આપણી ટીમ મેમ્બર શ્રીમાન હેમંતભાઈએ તૈયાર કરેલ વિડીયો સત્સંગ આપણે સાંભળીએ. રામ કબીર હેમંતભાઈ. સંભળાતો હતો? Now you need to unmute. Now you can share screen and play the video, please.
સંભળાય છે હવે? ના, ઓડિયો નથી આવતો. પાછું હું ટ્રાય કરું છું. હવે બોલજો. कोई फर्क नहीं। हम तो यहाँ तक Yeah, you're ये good. निकले कि आप में और हम में भी कोई फर्क ना रहे। हम तो इस मतभेद को दूर करके सत्संग की विचारधारा के साथ आए कि आप और हम संग हो जाएं। ना इनमें और मुझ में भेद करिएगा, ना हम दोनों में और आपके किसी निजी गुरु में किसी से भेद करिएगा, ना इनके आराध्य में, ना मेरे आराध्य में, ना आपके आराध्य में कोई भेद करिएगा, ना आराध्य को प्राप्त करने वाली किसी परंपरा में भेद करिएगा, ना आराध्य को चाहने और पाने के लिए उस पंथ का भेद करिएगा। मार्ग हो सकता है कि सबके अलग हो, विचार हो सकते हैं कि सबके विभिन्न तरीके से एक लक्ष्य तक पहुंचने वाले हो, लेकिन ध्यान रखना, ईश्वर का स्वरूप कोई भी हो सकता है, ईश्वर का नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन उस ईश्वर में अगर कोई मूल तत्व है वो है आनंद, जॉय। हम जब पैदा होते हैं ना माता जी, जॉय के साथ पैदा होते हैं, और आध्यात्म का टारगेट क्या है? उस जॉय को मेंटेन रखना। आध्यात्म का लक्ष्य इतना ही है, इससे ज्यादा कोई नया पहाड़ नहीं है। आध्यात्म कोई पुष्पक विमान नहीं है जिसमें बैठ करके आप सीधा स्वर्ग की यात्रा करोगे। ये सब कोरी कल्पनाएं हैं, इससे बाहर निकलो। आध्यात्म का सहारा इसलिए आवश्यक है कि जिस सुख और जिस आनंद के रूप में मैं पैदा हुआ, जन्म से लेकर के टिल माय लास्ट ब्रेथ, मृत्यु तक, ये आनंद बना रहे। आध्यात्म का एक ही अर्थ है कि जब मैं अकेले रहूं ना बुढ़ापे में, क्योंकि जवानी में तो मेरे चेहरे पे चमक होगी, मेरी अदाओं में एक अलग ही फना करने वाली चाहते होंगी, ऐसे एक्शंस होंगे जिससे मेरे से आकर्षित होंगे, तो लोग मेरे पास आएंगे, मुझसे मिलेंगे, मुझसे संसर्ग करेंगे, हो सकता है कि मेरी तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन जब ये चमड़ी लटक जाएगी ना, मुंह में दांत तक रहेंगे ना, आर्टिफिशियल दांत भी आपको दिन में 2 बार खोलने पड़ेंगे। एक सर्टेन स्तर पे आने के बाद तो डॉक्टर भी बत्ती से फिट नहीं करेगा, वो भी कहेगा अब तो मसूड़े भी हाथ तो दिए हैं, अब तो वो भी ऐसे कह रहे हैं अब नहीं लगाओ कुछ भी, कोई नहीं आएगा पास आपके। थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ी सी गंदगी, थोड़ी सी गंध आपके शरीर से आने लग गई, आपके परिवार का कोई व्यक्ति आपके पास नहीं होगा। आप में थोड़ा सा एक कोरोना नाम का एक बुखार की बीमारी आ गई, पति खुद कहता था कि पत्नी को फोन करके डॉक्टर को कहता इसको ले जाओ घर से। पत्नी खुद चुपके से नीचे जाकर के फोन करती थी कि मेरा पति ऊपर वाले रूम में है, उसको ले जाओ, वो कोविड-19 पॉजिटिव है। अर्थात आपके संकट में आपको ही आपको साथ रहना है। मैं सच कह रहा हूं, जीवन के अंतिम समय में जब आप अकेले होंगे ना, जब चमड़ी लटक जाएगी, मुंह लटक जाएगा, आंख की ये चमड़ी यहां आ जाएगी, गाल आपका यहां आ जाएगा और ये वाला हिस्सा यहां लटकेगा। सच तो यही है, मेरा भी होना है। मैं कोई बहुत अहंकार से खुश होकर नहीं बोल रहा हूं ये बात, ये सत्य है जो स्वीकार करने वाली बात। मेरा भी होगा, आप सबका होगा। उस समय में आप अकेले होंगे और मैं आपके उस अकेले के एकांत को है ना जॉय देना चाहता हूं। उसके लिए कहता हूं आज से ही दिन भर का हिसाब रोज रोज निपटाना शुरू कर दो, क्योंकि उस समय में जब आपके पास कोई नहीं होगा ना, उस समय में आप अपने आप को हिसाब देने लायक नहीं रहोगे। क्योंकि जवानी में तो हम होशियार हैं, हमारे अच्छे किए हुए कर्मों को हम इतने होशियार हैं, इतने चालाक और चतुर हैं, ये मनुष्य इतना चालाक है,
और दूसरे जीव नहीं होते, ये इंसान ही है। ये इतना चालाक है कि जवानी में अपने अच्छे कर्मों को ही याद रखता है, बुरे को नहीं। बुरे गलती से याद भी आ जावे ऑफिस में काम करते हुए तो उसे बैल्कनी में जाकर के सिगरेट के 2 फूंक मारनी पड़ती है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रहा हूं। वो स्ट्रेस नहीं है, वो उसके बुरे एक्सपीरियंसेस है जो आंखों के सामने आ गया, और उसको भुलाऊं कैसे काम करते हुए, फोकस कैसे रखूं, उसके लिए उसे सिगरेट पीनी पड़ती है। उसके लिए उसको अगर वो सामान्य थोड़ा सा ही है तो सिगरेट से निकल जाएगा। अगर वो अनुभव इतने ज्यादा बुरे हैं कि जो स्वीकार ही नहीं किए जा सके, तो फिर आप पता ही है आपको, इतनी 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 अलग अलग साइज के आते हैं बॉटल्स, उसकी और बढ़ोगे 6%, नॉर्मल है तो 6% वाला लेते हैं, और एक्सट्रीम लेवल का बुरा अनुभव है तो फिर 12%, रेड वाइट न जाने कौन कौन सी वाइन, और एक्सट्रीम है तो 21% वॉल्यूम, और एक्सट्रीम है तो फिर 40% वॉल्यूम अल्कोहल वाला चीजें लेते हैं। इसका सहारा लेना पड़ता उन अनुभवों को भुलाने के लिए, क्योंकि अकेले हो गए ना, एकांत आ गए। सोने से पहले शॉट्स कि भाई पी के सोएंगे तो भूल जाएंगे, यहाँ सब शांत हो जाएगा, कचरा सब भरा हुआ है ना जो आंखों के सामने आ रहा है जवानी का, वो सब शांत हो जाएगा। किसका सहारा लेना? अरे पहले से अनुभव अच्छे रखो, अपने कर्म अच्छे रखो कि बुरे अनुभव आपको बुढ़ापे में एकांत होने पर तकलीफ ना दे। ये सारी प्रैक्टिसिंग इसीलिए हो रही है। ये गीता, भगवत गीता, फलानी गीता, जितने भी प्रकार का ज्ञान, मेरे जैसे बाबा जी के सामने रोज कुर्सी पे आके बैठना, इन सब के पीछे इंटेंशन इतना ही है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने एकांत को सुखद करना चाहते हैं। अपनी लास्ट ब्रीथ के पहले के जो 5-7 साल है ना, जब हम अकेले हो जाएंगे, सरकार भेजेगी आपको 6-6 घंटे की ड्यूटी पर कोई इंसान को आपकी टेक केयर करने के लिए, क्योंकि आपके बच्चे भी आपके पास नहीं होंगे। वो करेंगे टेक केयर, क्योंकि उनको तो पैसा मिलता है, वो तो आएंगे 6 घंटे, वो संभालेंगे ना आपको। उस समय में आपके एक्सपीरियंसेस आपके सामने आएंगे। बस उसे ठीक करने के लिए हम ये सारी तैयारियां कर रहे हैं। इसे संक्षिप्त में समझो, जानो, अपने जीवन में उतारो। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, थोड़ा ताल में गाते। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया, मन का मैल नहीं धोया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब क्या कहा? हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है तेरी, हर कोने कलमश लगी हुई है, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे हृदय हमारा पिघल न पाया,
जब देखा दुखियारा हृदय हमारा किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब यहाँ पर इस बात को समझना है, भगवान कोई गरुड़ पर आसीन होकर के हमारे घर में लैंड नहीं करने वाले। यहाँ पर भगवान का अर्थ है आनंद। आनंद कैसे आएगा जब हम ये सारे कर्म करेंगे। अरे अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। शाम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। शाम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अब मैं सिर्फ 6:30 बजे अपनी बात को पूरी करूंगा। 6:20 हुए हैं और मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ 10 मिनट में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं हमेशा 1 घंटा देता हूँ सवाल पूछने के लिए, पर आप लोगों का एक पहला अनुभव होगा जिसमें हम संवाद को जीवित करने की बात कर रहे हैं। आपको बोलना होगा और आपको पूछना होगा। जब तक पूछोगे नहीं, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग कितने पानी में हो, कितने बाहर। आपके मन में कितने द्वंद्व हैं, आपके मन में कितने सवाल हैं। कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। सूत जी महाराज से 88,000 शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं भागवत में। देवहूति कपिल मुनि से पूछ रही है। नारद जी महाराज सनकादि ऋषियों से पूछ रहे हैं। शुकदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं और परीक्षित जी शुकदेव जी को। कन्वर्सेशन हमारे धर्म का मूल है। पूछना शुरू करो, चुपचाप बैठे मत रहा करो। आओ ना, सवाल लेके आया करो। कई प्रकार के सवाल अपने गुरु से, अपने संतों से, जो आपके पास अवेलेबल है, जहां पहुंच सकते हो पूछो। तो सब जी जी। महाभारत में कौरव में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र है, तो वो सिंबॉलिक है कि फिजिकल 100
गांधारी तो एक ही उनकी पत्नी थी। जी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आध्यात्मिक दृष्टि से तो 100 है, फिजिकली पॉसिबल उस जमाने में होते थे कि नहीं होते थे वो मुझे नहीं पता, इसका मैं संतोषप्रद जवाब नहीं दे सकता। आध्यात्मिक तो है 100, ठीक है। तो अलौकिक दृष्टि से तो है, लेकिन लौकिक दृष्टि से शायद मेरा तर्क या उस समय की क्या क्षमताएं या उस समय आयु कितनी होती थी, महामानवों की क्या स्थिति थी, इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। हो सकता था महामानव उस समय में कितनी आयु जीते थे, क्या आयु रहती थी। हम 100 का क्राइटेरिया रखते हैं, हो सकता है उस समय क्राइटेरिया बड़ा हो, आयु की सीमा बड़ी हो, तो ये अनुमान हो सकता है। पर ये हमारे जितने भी शास्त्र हैं ये लौकिक दृष्टि से नहीं लिखे गए, ये ध्यान रख लेना। हम गलती क्या करते हैं, आप तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, उन्हें लौकिक दृष्टि से देखते हैं। जो आज हमारे मन में सवाल चल रहा था कि हमारे दया भाई जो हैं वो जो भी सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं ये सब माया के ही तो अधीन थे, तो फिर उन्हें हम परम शक्ति कैसे कह सकते हैं, क्योंकि शिव जो है वो सती के लिए, सती के मोह में उतरे, अवतरित हुए, विध्वंस कर दिया उन्होंने यज्ञ। जब एक पुरुष एक स्त्री के लिए ये कर रहा है, हो सकता है कि वहां पर उन्होंने अधर्म देखा, एक स्त्री के साथ अनहोनी अहित होते हुए देखा, लेकिन फिर भी शिव गया तो अपने पत्नी के लिए, तो फिर ये क्या, तो माया के वश। उसमें तो शिव खुद कह रहे हैं ना, जब वो ध्यान महाध्यान में चले जाते हैं तो कहते हैं कि मैं भी सती का सुन करके थोड़ा सा अधीर हो गया था, तभी तो तांडव हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने धैर्यता की ओर बढ़े। फिर जो ध्यानस्थ शिव है ना, वो शिव आदि गुरु शंकराचार्य के शिव है। जो ध्यानस्थ शिव है, समाधिस्थ शिव है, वो तुलसी ने रुद्राष्टकम में जिस शिव की आराधना की वो शिव है जो निर्गुण और निराकार है। आरंभ साकार से ही होता है, निराकार की ओर बढ़ते। तो हर चीज का एक आध्यात्मिक और अलौकिक इस पूरे शास्त्रों को दृष्टि से लिखा गया है। अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है, पांडव कौन है, कौरव कौन है, ये सब आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो समझ आ जाएगा। आप खाली इनको कैरेक्टर वाइज इंसान समझ के हमारे जैसा ये माना कि एक्स ये है और वाई ये है, उसके बिना पजल सॉल्व नहीं होता ना, मैथ सॉल्व नहीं होती। मानो कि एक्स ये, वाई ये और फलाना फलाना ये, हम मानते हैं तभी तो कोई गणित में कोई भी मेथड सुलझता है। वैसे ही इन कैरेक्टर्स को हमारे जैसा एक मनुष्य रूप नाम दिया गया, स्वरूप दिया गया, इनको हमारी तरह दिखाया गया, चूंकि हम इनको देख करके अध्यात्म को, पहले इन कहानियों को याद करें, फिर इन कहानियों के कैरेक्टर के असल रूप की ओर आगे बढ़े। तो जो बढ़ गया वो तो अध्यात्म की स्थिति को और उन सारी परिस्थितियों को समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। दैट इज द मेन। ठीक। गुस्सा किसको कहते हैं और उसको काबू में कैसे लाएं? क्रोध तो शरीर की अभिव्यक्ति है, कोई चीज न समझ आने पर जो आवेश में निकलता है, जो आवेश आता है। लेकिन कभी किसी को, ये तो एक अभिव्यक्ति है, जो कोई चीज समझ में आने न आने पर, आपको समझ न आने पर, वो सही है या गलत है वो जरूरी नहीं है, वो बात का विषय, वो सेकेंडरी है। पर आपको नहीं समझ आया इसलिए क्रोध आया। समझ आ जाता तो क्रोध नहीं आता। और क्रोध भी उन पर आता है जहां पर सहजता से यह अधिकार होता है कि मैं निकाल सकता हूं। ये भी मैं बता दूं, जहां पर आपको लगता है ना कि मेरा अधिकार नहीं है, वहां क्रोध करने से भी डरते हो आप लोग। इंसान बहुत चालाक है और गुस्सा उसी पे निकालता है जिस पे समझता है यहाँ मैं निकाल सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। हमें भी एक सवाल है जी। जो जैसे यहाँ की संगत है, आप इतने देशों में जाते हैं, अभी जैसे इंडिया में काफी प्रचार होता है, हम सुनते हैं इधर हिंदू धर्म चल रहा है, मोदी जी बहुत धर्म कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है कि यहाँ की संगत और वहाँ की संगत में लाइक कोई डिफरेंस है कि सेम ही है? मतलब हम लोगों की सोच, जैसे आप कह रहे हैं ना बहुत देशों में जाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है कि इंडिया? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। भारत में वो लोग धर्म देख रहे हैं और यहाँ पर धर्म जीने का प्रयास चल रहा है, बस ये फर्क है। वो सिर्फ देख रहे हैं, उनके पास में शिव मंदिर है, घंटे सुनाई दे रहे हैं, शोर सुनाई दे रहा है, जगराते चल रहे हैं, जागरण चल रही है, बस शोर गुल में जाकर सब जॉय ले रहे हैं।
बाहरी जॉय ले रहे हैं। यहाँ पर वो शोरगुल नहीं है, इसलिए आप लोग इंटरनल जॉय की बात कर रहे हैं। तो अच्छा है, उस शोर से बचे हुए। भारत में संख्या भी तो ज्यादा है। हो सकता है कि जितनी संख्या अमेरिका में उतने इंटेलेक्चुअल लोगों की संख्या भारत में भी हो, और इतनी ज्यादा संख्या है कि उस पर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है सही खोजी लोगों को। लाइक जैसे पॉलिटिकली बहुत धर्म हो गया ना, तो मतलब ऐसे यहाँ पे इतना नहीं लगता मुझे। भारत में भी धर्म पॉलिटिकली नहीं होता है, नेता करते हैं अलग विषय, धर्म तो कोई राजनीति से परे है। धर्म तो अपनी नीतियों और अपने सिद्धांतों पर चलने वाली चीज है, जो हर व्यक्ति का अपना धर्म। कुर्सी का धर्म क्या है पता है? बिठाना। और कोई इस कुर्सी को तोड़ के बैठना चाहे तो वो अधर्म करेगा। अब इस कुर्सी का धर्म व्यक्ति के अनुरूप बदलता रहता है। मेरे सामने अगर कोई छोटा बालक बैठा है तब तो मैं इस कुर्सी के धर्म को स्वीकार करूंगा, मैं बैठ जाऊंगा, क्योंकि कुर्सी का धर्म ये है कि इसको बैठाना है। कुर्सी तो यही कह रही कि बैठो, लेकिन मेरे सामने कोई बुजुर्ग माता है तो धर्म यहाँ बदल जाता है। मैं इस कुर्सी को उन्हें दूंगा, उन्हें बिठाऊंगा। कुर्सी का धर्म बिठाना है, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार तय करता है कि वो धर्म को किस तरह से जी रहा है। तो जो नई जनरेशन है इंडिया में, वो खुले दिमाग के हैं, मतलब ऐसे इतना ज्यादा जैसे युवा इस दुनिया में कहीं पे भी हो, युवा सारे अनफिल्टर्ड है। ओके, वो साफ सुथरे हैं, ओके, कोई फिल्टर नहीं है उनकी आंखों के सामने। इस वजह से उनको जो ज्यादा अच्छा लगता है, जहाँ ज्यादा उन्हें आनंद आता है, जो उन्हें आकर्षण की चीज लगती है, वो वहाँ मूव कर जाते हैं। क्योंकि न्यूज में कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वो वहाँ के लोग शायद ज्यादा धर्म की तरफ जा रहे हैं, या नहीं ऐसा नहीं है। मैं वो न्यूज में शायद होता होगा ज्यादा। धर्म की तरफ जाना मतलब, अब आप मंदिर जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, उससे धर्म को मान रहे हैं, तो फिर मेरा तो धर्म ऐसा नहीं है। मेरा धर्म उन नंबर्स पे नहीं है। बेटा शांत रहो, थोड़ी देर कृपा करो, 5 मिनट, फिर अपन करेंगे बात। तो नंबर्स पे जाएंगे ना, तो धर्म वैसा नहीं है जो दिखाया जा रहा है। कर्म पर ध्यान है, स्टिल कर्म करने में ज्यादा विश्वास। कर्म से भी ऊपर है। कर्म से भी ऊपर। हम तो अकर्मा होना चाहते हैं। कर्म करे पर रहे अकर्मा, ये धर्म है। ये देखो, शब्दों के कॉन्फ्लिक्ट में मत फंसो। मैं आपके हर चीज पे 10 तर्क दे दूंगा स्वयं को सिद्ध करने के लिए कि मैं ज्ञानी हूँ, ठीक है ना। ये होता है, हर ज्ञानियों में ये अवगुण है, मुझ में भी यही अवगुण। लेकिन मैं इसको बार बार वापस हाथों हाथ याद भी कर लेता हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं आपके साथ भी गलत कर रहा हूँ। मैं आपको समझा दूँ, जो आप देख रहे हो ना टीवी पे, वो बिल्कुल वैसा ही है जो यहाँ पे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। वहां पर एक ही समूह के, एक ही तरह के लोग बहुत बड़ी संख्या में, यहाँ पर कम है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहे इतने बड़े। बाकी वही चीजें यहाँ भी चल रही, वही वहां भी चल रही, बस यहाँ पर शोरगुल कम है, तो लोग असल तत्व की ओर बढ़ने की चाहना रखते हैं। यहाँ पे भी नहीं, ढोंग यहाँ पे भी है। भारत में मैं इस तरह की इंटेलेक्चुअलिटी के साथ बात अभी भी नहीं कर पा रहा। करता हूँ, युवाओं के साथ करता हूँ, पर वहां पर आध्यात्म की ये स्थिति नहीं होती। वहां पर ABCD में चल रहे हैं, अल्फाबेट सिखा रहा हूँ अभी उनको। आपके बच्चों में भी अगर मैं जाऊंगा तो अल्फाबेट से ही स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग जो वे लोग हैं जिनसे अल्फाबेट से आगे की बात कर सकता हूँ, और भारत में ऐसे लोग दिखाई कम पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटलाइजेशन भारत में बहुत तेजी से हो गया, बहुत तेजी से हो गया। सब शोरगुल में चले गए। सबका आध्यात्म जो है ना, बस मोबाइल पे भजन लगा दिया, किसी का संत की कथा लगा के छोड़ दी, रसोई में काम कर रही है और वो कथा सुन रही है। क्या हो जाएगा? ये सब क्या कर रहे हो आप? एक काम को एक चीज में एक समय पूरा कर लो ना यार। जब आप अच्छा भोजन बना रहे हो, इट इज मेडिटेशन, वो साधना है, क्योंकि आप पाक शास्त्री हो। उस समय में आप भोजन की साधना कर रहे हो, बना रहे हो। तो जो कर रहे हो उस साधना को भंग क्यों कर रहे हो? एक तरफ भोजन बना रहे हो, एक तरफ एक वीडियो स्टार्ट कर दिया जिसमें कुछ चीजें चल रही हैं। वैसे भी अगर वहां पर म्यूजिक है तब तो वो एंटरटेनमेंट हो गया। अगर उसमें कोई संत हंसा रहा है तो फिर वो हास्य एंटरटेनमेंट हो गया। ज्ञान की बात कर रहा है वो तो वैसे भी समझ नहीं आनी, कुकिंग के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो लोग भी कथा चला करके ये भोजन बनाना और घर का काम करना करते हैं ना, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक साधन है उनके लिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो भारत में शोरगुल ज्यादा है, यहाँ पर नहीं है।
यू गाइस ब्लेस्ड। और मैं भारत और अमेरिका और मैं तो भूमि में फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। ये वीज़ा के कारण मुझे पता चलता है कि मैं अमेरिका आ रहा हूँ। मैं तो एक यात्रा करने निकलता हूँ, मुझे राजस्थान से रामेश्वरम जाने में भी 10 से 12 घंटे लगते हैं। फ्लाइट से भी जाता हूँ तो स्टार्ट करता हूँ एयरपोर्ट जाना, एयरपोर्ट पे वेट करना, फ्लाइट लेना, फिर कनेक्टिंग फ्लाइट लेना, फिर उतरना, फिर वहाँ अपने गंतव्य तक पहुँचने 12 घंटे लगते हैं। और आपके भारत से यहाँ आने में भी 14 घंटे ही लगते हैं। तो मेरे लिए तो कोई फ़र्क नहीं है, मैं चाहे रामेश्वरम जाऊँ चाहे अमेरिका जाऊँ, मेरे लिए जहाँ पर सत्संग है वहीं तीर्थ है। तो जो एनर्जी मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ वही एनर्जी मैं रामेश्वरम जाके भी फील करता हूँ, वही एनर्जी मैं बद्रीनाथ केदारनाथ जाके भी फील करता हूँ। जगह का भेद मेरे मन में तो नहीं, क्योंकि मैं आज इस जनरेशन में जन्मा, शायद ये फिल्टर से मैं बच गया, मेरे सामने भी वो फिल्टर नहीं है। तो मैं साधारण शब्दों में समझ पा रहा हूँ धर्म को, आध्यात्म, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। मुझे ज्यादा प्रूफ देने में भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपको प्रूफ दूं, प्रमाण दूं, तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, सूरदास जी ये कह रहे हैं। ठीक है, छोटा मोटा तो देना भी चाहिए चीजों को प्रमाणित करने के, लेकिन विद्वता को प्रमाणित करने के लिए एक ही बात को कहने के लिए 10 प्रूफ दो, इतना टाइम खराब करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बात एक ही कहनी है, एक ने कहा वही ठीक है, वही समझ लो। 10 प्रमाण देकर के मैं समय खराब ही कर रहा हूँ। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया? थैंक यू। और कोई अभी भी हमारे पास है 2-1 मिनट, फिर मैं बंद करता हूँ। बचपन से भक्ति योग का अभ्यास है, तो वो करने में बड़ा आनंद आता है। रोज की भजन कीर्तन पाठ पढ़ो, जो रेगुलर पूजा पाठ करते हैं। भाई जी ने क्रिया ज्ञान दिया, 3 साल हो गए, पर अभी भी वो करने में उतना उत्साह नहीं, उतना आनंद नहीं आता, और इतने हम उत्साही नहीं होते जितना वो करते आ रहे हैं बचपन से। तो उसको बढ़ाने के लिए और उसमें रेगुलरिटी लाने के लिए बेस्ट पॉसिबल है। सभी इंसान एक जैसी प्रकृति के नहीं होते हैं। तो भाई जी ने अपना काम किया, अब उस ज्ञान को आप आगे डिलीवर करने के लिए उपयोग में लो, क्रिया ज्ञान को आप आगे बढ़ाओ। और आपको अगर भक्ति योग में आनंद आता है तो भाई जी और मुझको क्या प्रॉब्लम होगी, आप उस मार्ग को फॉलो करें, क्योंकि लक्ष्य तो हमारा एक ही है। भाई जी को तो अच्छा लगेगा। अब आपने जो भाई जी से प्राप्त किया वो वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, उसे डिलीवरी करो, आगे दो। जितने लोग मिले उतने लोगों को क्रिया ज्ञान दो। उन्हें भी अगर कोई पसंद आएगा तो ले लेगा, नहीं आएगा तो उनके पास वो ज्ञान रह जाएगा। और उनको कहना अगर तुम्हें ये मार्ग अच्छा लगता है तो फॉलो करो, नहीं करो तो आगे डिलीवर तो करो। क्योंकि क्रिया ज्ञान के भी तो ग्राही बैठे हैं इस दुनिया में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्रिया योग की जरूरत है। सबके लिए एक मार्ग नहीं है, तभी तो सनातन धर्म में इतनी सारी विचारधाराएं, इतने विचार, इतने संप्रदाय, इतने पंथ, इतना सब। संप्रदाय होना गलत नहीं है, पंथ होना गलत नहीं है, विचार होना गलत नहीं है। विचारवाद, पंथवाद, संप्रदायवाद, ये कट्टरवाद गलत है, ये कट्टरता गलत है कि यही है सब कुछ, इसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं। कि फलाना भगवान जो है यही हमारे इष्ट है। मैं मंदिरों में जब एक ईश्वर की प्रतिमा को बड़ा देखता हूं और दूसरे ईश्वर की प्रतिमा को छोटा देखता हूं, मेरी आत्मा टूट जाती है। आप कौन होते हो किसी एक को सुपीरियर दिखाने वाले? क्यों कर रहे हो ये सब? राम का मंदिर है तो राम का ही रखो ना यार, क्यों उसमें हनुमान जी, शिव जी, महादेव सबको बिठाना है आपको? क्यों राम? फिर चाहे भले राम की 500 फीट बड़ी मूर्ति लगा दो। होता क्या है, जो समझदार है उनमें तो कोई फर्क नहीं, उनके लिए राम कृष्ण जो भी है सब मूर्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइज से भी फर्क नहीं। जो सामान्य लोग है ना, उनको ऐसा लगता है कि जो बड़ी साइज की मूर्ति है ना, ही इज सुपीरियर, बड़ा ये है। और बड़े सॉफ्टली कुछ सांप्रदायिक लोग जो संप्रदायवाद फैला रहे हैं वो ऐसा करते हैं। वो अपने गुरु फलाने देव या फलाना ये, उसकी मूर्ति के साइज सेंटर में बड़ी रखते हैं। मंदिर भी बहुत बड़ा होगा उनका, देख लेना आप। अमेरिका में कई जगह है, कुछ संप्रदायों के लोगों ने ऐसा कर रखा है। बड़ा सा मंदिर होगा, मंदिर का वैभव देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि ओ हो साक्षात परमात्मा तो यहीं रहते होंगे। इतना बड़ा मंदिर, मंदिर की कीमत आप 1-1 हजार 2-2 हजार करोड़ के मंदिर हैं। अंदर घुसोगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में उनके गुरु की प्रतिमा इतनी बड़ी होगी। मुझे उनके गुरु से क्या मैं तो बहुत खुश हूं यार, तुम्हारे गुरु है, मेरे भी गुरु है। वो तो हम सबके गुरु, साधु चाहे कोई भी हो, किसी भी परंपरा का विचार का, वो गुरु ही होगा। लेकिन उसकी मूर्ति बड़ी, फिर साइड में घूम के देखता हूँ राम जी की छोटे सा मूर्ति है, इधर कृष्ण की मूर्ति है, अलग अलग मंदिर बना रखे। मैं इसके खिलाफ।
सामान्य दृष्टि में आप बताना दुनिया को यही चाहते हो कि हमारा गुरु ही इन सब का ईश्वर है, सबसे श्रेष्ठ है, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ये बड़ा है। तो अगर आपको भक्ति योग में जाना है तो आप हो बचपन से हो तो उसको चेंज नहीं करना है। उस ज्ञान को अगर सहयोग में लाने में आपको और भक्ति योग में आपका वो क्रिया योग का ज्ञान सहयोग करता है तो उसका उपयोग करो, मजा लो यार, जो नया प्राप्त हुआ है उसका आनंद लो, उसका उत्सव करो। नहीं फिट बैठते हो, कम से कम ये बात अच्छी है कि आप एक्सेप्ट तो कर रहे हो कि मेरे को ये ठीक लगता है, तो वो कहोगे तो वो तो उसमें भी खुश है। उन्हें तो ये चाहिए कि आप आध्यात्मिक हो जाओ, उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप इस मार्ग से आध्यात्मिक हो। ये इनका इंटेंशन होगा, ये हर सच्चे साधु का तो इंटेंशन यही होगा, समझ गए? तो आप बहुत सही कर रहे हो। एक बार इनकी सच्चाई और इनकी हिम्मत के लिए जोरदार ताली। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आदरणीय हमारी साध्वी माता जी जो है, जिनको आप बाई जी कहते हैं, मैं तो कहूँ बाई जी वर्ड से ऊपर निकलो, साध्वी माँ है ये, बाई जी नॉर्मल वर्ड, बाई जी से तो बड़ा है, ये साध्वी माँ है। इनको गुरु माँ कहा करो आप लोग, साध्वी माँ कहा करो, गुरु माँ भी कह सकते हो, जो ज्ञान दे रहे हैं। बाई जी वर्ड इज नॉट गुड वर्ड। अब मुझे नहीं पता, आपकी परंपरा में शायद अच्छा होता होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इनको गुरु माँ कहेंगे। कुछ चीजें समय के साथ बदलनी भी चाहिए, अच्छी करनी है, ये माँ है हमारी। तो जो माँ से आपको प्राप्त होता है, ठीक है, वो माँ से जो प्राप्त होता है उसको प्राप्त करो, और इनसे आपको इतनी हिम्मत प्रदान हुई है कि आप सच बोल सकते, ठीक है? तो आप कितने ब्लेस्ड हैं कि ऐसी माँ आपके पास जो आपको कम से कम सच बोलने, नहीं तो ऐसी हिम्मत नहीं करते लोग कि जिन्होंने ज्ञान दिया वो भी बैठे हैं और दूसरा गुरु आया उसके सामने कह दिया उनको तो ये ठीक नहीं लगा। होती नहीं है साहब, इतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन यू आर ब्लेस्ड, यू हैव राइट पर्सन हु इज गिविंग यू आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेजेस। और कोई लास्ट, फिर ये देखो यही समय है, या फिर मैं इसको पूरा कर दूं? हो जाता है पूरा, रहने देते हैं। हो गए आपके सवाल पूरे? हाँ जल्दी जल्दी, अब जो भी है फटाफट एक साथ कर लो सवाल को। जैसे होते थे शौनक आदि ऋषियों में से शौनक जी खड़े होते थे, शौनक आदि मतलब 88,000 में से एक खड़ा होता है कि भाई हम सब की तरफ से एक सवाल है सूद जी, वैसे ही आप में से भी कोई एक सवाल देना, समय की मर्यादा है। जैसे आप युवा पीढ़ी से हैं, आप इतने यंग हैं, आपके पास इतनी कम उम्र में ये जो आपने हासिल किया है नॉलेज, जो भी है आपकी, जो भी आपने सीखा है और अपने जीवन में उतारा है, और आप युवा पीढ़ी को भी समझा रहे हैं, हमको भी समझा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे जो भी सुना, बहुत अच्छा लगा। हम इनसे तो हर हफ्ते सुनते हैं, इनके पास बैठते हैं, हर रोज़ बैठते हैं, बहुत मतलब हमें बहुत भाग्यशाली है, हम सब यहाँ बहुत भाग्यशाली है कि हमें संत समागम मिला है। तो बस एक सवाल यह है कि आप जैसे जब युवा पीढ़ी को समझाते हो तो आर दे रिसेप्टिव ऑफ व्हाट यू टीचिंग देम, डू दे रियली लिसन? बिकॉज युवा पीढ़ी आजकल बस मतलब अपनी करियर के पीछे, अपने पैसे के पीछे, अपने डिजायर्स के पीछे जैसे भाग रही है, तो क्या उनको थोड़ा भी इंटरेस्ट? नहीं, मैं बिल्कुल है। अभी आपको फ्लायर दिया ना, ये फ्लायर में मुझे लगता है इस बात से किसी को आपत्ति नहीं होगी। इस फ्लायर में मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप जाना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एक्स पे, यूट्यूब पे। जब आप वहाँ जाएंगे तो देखना, मैं आपको डाटास भी शेयर कर सकता हूँ, मेरे मोबाइल में भी उसका एक्सेस है, जो मेरी इंडिया में टीम संभालती है, मेरा भी उसमें एक्सेस है। उसमें 97% जो है वो अंडर 40 है मेरे व्यूअर्स में, 97% अंडर 40 एज के लोग मेरे व्यूअर हैं। मेरे जो वीडियो मिलियंस में है या लाखों में है, जो भी लोग सुन रहे हैं वो सब में 97% है, मतलब यूथ तो सुन रहा है। हाँ, गंदगी भी बहुत निकालते हैं, कमेंट में मुझे गालियां बढ़ती है, डोंगी, तू ऐसा है, ये फालतू पैसा लेता होगा। पता है मेरा एक वीडियो अभी हाल ही में बहुत ज्यादा विवादों में चल रहा है। क्यों चल रहा है मालूम? उसमें मैंने ये कह दिया कि मैं कथा का 1 रुपया नहीं लेता। वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा आज का यूथ, मतलब वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि ऐसा कोई साधु इस दुनिया में आज है, आज की तादाद में, जो पैसा नहीं ले रहा कार्यक्रम करने का। वो बिलीव ही नहीं होता। फिर मैंने उनको वो पूछते हैं फिर आपका दिन कैसे चलता है, तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए एक मैसेज डाला
मैंने कहा हमारे धर्म में एक परंपरा है, साधु को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी उसके आश्रम जाता है या जो भी उसके पास जाता है उस एनवलप के थ्रू उसके चरणों में कुछ ना कुछ रखता है। मैंने ये कहा कि मैं मांगता नहीं हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं पैसों को स्वीकार नहीं करता या लेता नहीं हूँ या टच नहीं करता। अरे यार कपड़े जो पहने ना ये भी बिना पैसे के नहीं आते। आप लोग आते हो, ये अभी बिटिया शायद प्रसाद रख के गई थी, आप प्रसाद लेके आए थे, ये बिना पैसे के नहीं बनता। इसको खरीदने के लिए आपको जाना पड़ता होगा, स्टोर में जाना पड़ता होगा, वॉलमार्ट जाना पड़ता होगा या पायनीर जाना होता है कहीं तो जाते ही हैं और वहां जाकर से वहां से खरीद करके लाते हैं। तो व्यवस्था तो उसी से चलती है, लेकिन सहजता से आपके द्वारा दिया हुआ इसे स्वीकार करना ढोंग नहीं है। मांगना पाप है और पैसों के हाथ नहीं लगाता हूं ये कहना ढोंग है। तो मैं ढोंग नहीं करता, मतलब आप जो देते हैं उसको लेता भी हूं, लेकिन मैं मांगता नहीं हूं। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो वीर। ये हमारे ऋषियों ने कहा है कि मांगना जो है ना मरने जैसा। संतों को मांगने की परमिशन शास्त्रों में कितनी है पता है? उदर पूर्ति हेतु मांग सकते हैं। मैं दोनों हाथ फैला करके अगर मेरे पास भोजन है, क्योंकि मैं कमाता नहीं हूं, क्योंकि मैं जॉब नहीं करता, क्या आपको नहीं लगता कि जितना मैं आई एम PhD, मैं डॉक्टरेट किया हुआ, मैंने PhD किया, आपको नहीं लगता कि अगर मैं जॉब करूंगा तो मैं इतना तो कमा ही सकता हूँ कि जिससे अपना पेट भर सकता हूँ, एक अच्छी ढंग की गाड़ी ले सकता हूँ, घर ले सकता हूँ, अगर पत्नी होगी तो उसे खिला सकता हूँ, बच्चे होंगे तो उसे खिला सकता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ ना। लेकिन फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया ये पद कि उदर पूर्ति उतना मांगने का अधिकार हमारा शास्त्र हमें देता है। और उसमें भी नियम है, एक दिन में एक सन्यासी 5 घर तक भिक्षा मांग सकता है। कितने? और 5 घर तक कितनी देर खड़ा रहेगा इसका भी नियम है। गौ दूहन वेला, अर्थात एक गाय का थन दूहने में कितना समय लगता है? इसके लिए शायद 2.5 से 3 मिनट का समय लगता है, जिसमें एक थन जो है गाय का वो दुआ जाता है। पहले काउंटिंग जो है, धन की व्यवस्था गज धन, गौ धन, समय की व्यवस्था समय से, गौ दूहन समय से, ऐसे कैलकुलेशन किए जाते। तो पुरानिक समय में कहा जाता था कि एक साधु गौ दूहन वेला तक ही एक घर के बाहर खड़े रह करके भिक्षाम देही का 2 बार पुकार कर सकता है। 2 बार मैं बोल सकता हूं एक घर के बाहर जाकर, भिक्षाम देही। फिर 1-1.5 मिनट के बाद जब मेरी गौ दूहन वेला पूरी होने वाली होगी, उससे आधे मिनट पहले भिक्षाम देही, ये 2 बार मांग सकते और सिर्फ 5 घर की यात्रा कर सकते। ये भिक्षा का भी नियम है। बताइए कितना साइंटिफिक है हमारा धर्म कि अगर इससे अधिक मैंने कुछ कर लिया ना, क्योंकि उन्होंने जांच तो की होगी, अधिक समय की भी जांच की होगी, 5 की जगह 10 घर भी मांगा होगा, लेकिन उन्होंने देखा होगा कि इसके बाद अगर थोड़ा सा भी अति होता है तो मांगने की लिप्सा अधिक जागृत हो जाएगी, जो आवश्यकताओं से अधिक हो। समझ गए? किसका सवाल था ये? आपका। कि तो इसलिए हमारे युवा जन जो है, युवाओं में मैं जुड़ा, इसलिए मैं आपको बताता हूं, उसमें इंस्टाग्राम की जानकारी है। आप लोग जरूर मुझसे सवाल पूछें, बिना झिझक के। हमारी गुरु माँ से भी पूछें, मुझसे भी पूछें, सोशल मीडिया के थ्रू भी पूछें। इसका कोई मतलब नहीं है कि आपका एक्सेस मुझे मिल रहा है या आप मुझसे जुड़ जाओगे, इस बात का खतरा नहीं है। यहां पर आप कुछ प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि मैं अपनी धाराएं और अपना साम्राज्य स्थापित करने के सख्त खिलाफ हूं। मैं सिर्फ अपना शुद्ध विचार आपको देना चाहता हूं। तो वो विचार जानना है तो उधर फॉलो करें। उसमें हमने व्हाट्सएप के नंबर भी दे रखे हैं कि कुछ माताओं को अगर सोशल मीडिया पे नहीं पूछना, और मेरे निजी नंबर में अमेरिका में दे रहा हूं, भारत में नहीं देता, क्योंकि भारत में भीड़ बहुत है। हमारी एक कथा में, सत्संग में अगर हम भीड़ प्रोग्राम करते हैं 10,000-15,000 लोग, तो संभव नहीं है सबको जवाब देना, और वहां पर इतनी इंटेलेक्चुअलिटी भी नहीं है। पर अमेरिका के लिए तो मैंने अपने नंबर डाले, पहला नंबर जो मेरा नंबर, कि आपको सवाल पूछने के लिए मुझे मैसेज करना। नो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी सारी मॉर्निंग गुड है, सारी इवनिंग गुड है, मेरी नाइट भी गुड है, आई एक्सेप्टेड, इसकी जरूरत नहीं है। मैं विद गुरु माँ, हम सब जो है, हम सब की रात्रि आनंदमय है, उल्लासमय है। बस आप लोग पूछना बंद मत करना। आज का सेशन तो मुझे समय के बंधन के कारण पूर्ण करूंगा, लेकिन आप सबसे निवेदन है
पूछना बंद मत करना, माँ से पूछते रहना। मुझसे पूछना है तो मेरे नंबर भी दिए हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी है, उस पर पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल जरूर पूछना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप जैसे युवा मुझसे सवाल पूछेंगे, मुझसे जुड़ेंगे, और इसलिए जुड़ेंगे कि सिर्फ ज्ञान, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे पास, और कुछ भी मांगने की अपेक्षा भी मत करो। हाँ, मेरी मित्रता इसी में है कि आप मुझसे पूछते रहे, तो मुझसे दोस्ती करो, आओ मित्र बनो, मेरे साथी बनो, हम सब एक पथ के पथिक हैं। इन्हीं भावों के साथ आइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आनंद થઈ ગયો કેવો? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हम सभी लोगों ने बहुत प्यार से स्वामी जी के विचारों को, उनके अनुभव युक्त मार्मिक विचारों को सुना, और जो कुछ भी उन्होंने सुनाया सच में बहुत ही अच्छे अनुभव युक्त उनके विचार थे। अगर गहराई में जाकर के आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तभी गूढ़ बात समझ में आएगी। कहते हैं संतों की बानी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। ज्ञानियों की बात जो है बहुत रहस्यमय होती है, गूढ़ होती है, और उस गूढ़ तत्व को समझने के लिए उस अवस्था, उस समाधि अवस्था में इंसान को जाना पड़ता है। कई बार संतों की बात को हम समझ नहीं पाते, उनके ज्ञान को समझ नहीं पाते, क्योंकि उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें उस समाधि अवस्था में जाना पड़ता है। तभी हम उस बात को, उस तथ्य को समझ पाते हैं। कितनी सुंदर बात उन्होंने हमारे समक्ष रखी कि सारी जिंदगी जो भी हम करेंगे, अंतिम समय में वही हमारे लिए सहायकारी बनेगा। चाहे वो युवान हो, वृद्ध हो, बालक हो, जो भी हो। अगर अपनी जिंदगी में हमने जो कुछ भी किया होगा, हम चाहते हम सुखी हो, हम संपन्न हो, आनंदमय हमारा जीवन हो, तो कबीर जी कहते हैं 5 प्रहर तो धंधा कीन्हा, 3 पहर राह सोय, 1 पहर हरि गुण ना गाया, 1 पहर हरि गुण ना गाया, कुशल कहाँ से होय। रैन न जागे कोई दर्द बिना, रैन न जागे कोई, रैन न जागे कोई दर्द बिना, रैन न जागे कोई। या जागे कोई रोगी ने भोगी, या जागे संत बीर, या जागे कोई संत जो बिरला, या जागे कोई संत जो बिरला, भजन सवैया होय। रैन न जागे कोई दर्द बिना, रैन न जागे कोई। कहते हैं 5 पहर तो धंधा कीन्हो, 3 पहर रहा सोई, 1
पहर हरि गुण ना गाया कुशल कहाँ से होए। तो उन्होंने पूरा अपना जो भी प्रवचन उन्होंने किया, जो हमारे समक्ष अपने अनुभव युक्त विचार रखे, उन सब का निचोड़ यही था कि अपनी जिंदगी में जो कुछ भी आप करोगे वही चीज़ आपके अंतिम समय में काम आएगी। इसलिए अधिक न कह करके अपने विचारों को मैं विश्राम दूंगी। और स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे आश्रम में आए और आपने अपने बहुत सुंदर अनुभवयुक्त विचार हमारे समक्ष रखे, क्योंकि हम तो पहली बार ही आपको मिले। प्रफुल्ल भाई ने हमको बताया कि ऐसे आप भारत देश से यहाँ पे आ रहे हैं करके। और वैसे देखा जाए तो देखो, संतों के लिए तो सब भूमि गोपाल की होती है। आपने बहुत ही अच्छा कहा कि ना आपको किसी जातिवाद से, किसी संप्रदायवाद से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संत महात्मा को ऐसा ही, संत महात्मा को ही नहीं, हर इंसान को ऐसा होना चाहिए। क्योंकि देखो, धर्म क्या चीज़ है? जिन जिन चीज़ों के बीच में अब हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मेरे तेरे की भावना हमारे अंदर आ जाती है, तो इन सब से ऊपर जब हम उठते हैं, अध्यात्मवादी जब हम बनते हैं, उस अध्यात्म को पहचानते हैं, तो जब हम उस अध्यात्म को पहचान लेंगे तो सारा झगड़ा वहाँ पे खत्म हो जाएगा। कहते हैं वो गुरु के दरबार में होता है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख क्या ईसाई, सबके लिए खुला है गुरुदेव का द्वार। गुरु का द्वार जो है, संतों का ज्ञान जो है, सबके लिए होता है। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वहाँ किसी तरह का भेद नहीं होता। तो महात्मा जी ने, स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात सुनाई। तो अधिक न कह करके मैं भी अपने विचारों को विश्राम दूंगी। आप सभी लोग यहाँ पे आए, और बहुत बड़ी बात तो यह है कि हमारी ये डॉक्टर शोभना बहन ने खुद अपने हाथों से आज भोजन प्रसाद बनाया है। देखो, आप सोचो इतनी इस उम्र में, वैसे उम्र तो हम उनको नहीं कहते, क्योंकि इनको देख करके इनका जो ये ड्राइव करती हैं और ये यहाँ पे अक्सर सत्संग में आती है, और इनका प्रवचन जो है सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी हर बात दिल से निकलती है और दिल तक पहुँचती है। क्योंकि जब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आत्मा की जो बात होती है, उसको समझने के लिए जो है समाधि अवस्था में पहुंचा हुआ आदमी उसको समझ सकता है। इसलिए ये हमेशा बहुत अच्छा सुनाती हैं। और अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे के लिए हम लोग जो है वो गीता का अध्ययन करेंगे, और जूम के द्वारा। तो आप जो भी उसमें आना चाहें, अभी कोई मेरे को बता रहा था कि मतलब आपकी जो आप गीता प्रवचन करते हैं बहुत अच्छा लगता है, आपका भागवत बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा क्या भागवत और भगवत दो गीता अलग अलग हैं दोनों? आप कितने लोग अलग अलग समझते हैं दोनों को? तो वो कहने लगे कि दोनों एक ही हैं। मैंने कहा देखो, भागवत जो है, भागवत में 12 स्कंद हैं। भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने जो किया वो सब भागवत में है, और भगवत गीता में क्या है, जो भगवान ने कहा वो भगवत गीता में है। तो वो जो भगवान श्री कृष्ण महाराज ने जो अर्जुन को समझाया, तो उसके बारे में ही हम जो है चर्चा करेंगे हर शुक्रवार को। तो आप सब लोग गीता का अध्ययन कीजिए, सबके घर में गीता होगी। अगर आपके घर में नहीं है तो हम आपको देंगे, हमारे पास है आश्रम में गीता, तो आप लोग यहाँ से ले जा सकते हैं। और जो है अलग बहुत सारी प्रोग्राम जो भी हैं यहाँ पे, तो आपको अभी यहाँ पे बताया जाएगा। महीने में एक प्रोग्राम हमारा होता है, हर महीने के लास्ट सैटरडे को जीवंता का प्रोग्राम होता है, और जिसको नीलम जो है उसको हैंडल करती हैं उस प्रोग्राम को। तो आप सभी लोग जो हैं, और हर बुधवार को यहाँ पे ध्यान का प्रोग्राम होता है शाम को 6 बजे से 7 बजे तक, और योगा क्लासेस होती हैं। तो आप समय से आकर के सत्संग भजन का लाभ लें। अब हम सब लोग प्रसाद लेंगे। तो जो शोभना बहन ने प्रेम से प्रसाद की व्यवस्था की है, क्या है आज आरती करा नहीं, आज क्या किस उपलक्ष्य में आपने भोजन रखा? રામ કબીર, થેન્ક યુ. આજે બહુ સુંદર આપણે જે ભક્તિ કે અધ્યાત્મક માર્ગની અંદર
જે આપણે પ્રગતિ કરીએ છીએ અને જે રસ્તાઓ છે તેમાંનો એક રસ્તો આ યોગનો, અને એ યોગના જે જગ્યાએ શીખવામાં આવે છે, જે જગ્યાએ યોગ પરથી અધ્યાત્મકની સિદ્ધિની જે વાતો કરવામાં આવે છે, જેના પ્રયોગો કરવામાં આવે છે, જેના પર આપણે કાયમ તમે ત્યાં જઈને મનની શાંતિ અને આધ્યાત્મિકનો અનુભવ કરી શકો છો, એવું સ્થાન અહીં વિટિયર કેલિફોર્નિયા, સાઉથર્ન કેલિફોર્નિયામાં છે. જે એમણે પણ વધારે ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય એ પ્રફુલભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે એ બાબતે. અને આજનું જે આપણે આપણા અભયદાસજી દ્વારા જે પ્રવચન કરવામાં આવ્યું એ ઘણીવાર આપણને કહે છે કે જુદા જુદા માર્ગો દ્વારા તમે આધ્યાત્મિક શાંતિ, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરી શકો છો. એ આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં જેમ કે ભક્ત છે, આપણે ભક્ત છીએ તો આપણે ભજન કરીએ છીએ, ઘણા ભક્તિ કરે, ઘણા મનન કરે, તો આ પ્રમાણે અહીં યોગની સાધના કરવામાં આવે છે. અને એ યોગની સાધના પર બહુ સુંદર પ્રવચન આપણે 2 વીક સાંભળ્યું, અને એ પ્રવચન એમણે ત્યાં વિટિયર કેલિફોર્નિયામાં આપ્યું હતું. હવે તમે પણ આજે આપણી પાસે સમય પણ ઘણો ઓછો છે, તો પ્રશ્નોત્તર કે ડિસ્કશન આપણે નથી કરતા અત્રે, પરંતુ આવતા વીકે, આવતા સેશનની અંદર, આવતા રવિવારે આપણે આપણી સાથે કાનમ જિલ્લા ભક્ત સમાજ જે આપણી સાથે છે, જેઓના આપણા બધા જે ભક્ત વિચારો આપણા જે સરખા છે, એ કાનમ જિલ્લા વિસ્તારમાંથી આપણી સાથે સાકરબેન જોડાશે. અને સાકરબેન કબીરજી પ્રત્યેનો એમનો પોતાનો મંતવ્ય, એમનો પોતાના વિચાર તત્વ કે જે ઘણા ઘણા પ્રયત્નો થકી એમણે જીવનભર એકત્રિત કર્યું છે, એ આપણને સમજાવશે. તો આવતા રવિવારે મળ્યો. એના પછીના રવિવારે, which is about June 23rd, આપણે કબીર જયંતિ છે. તો બધાને કબીર જયંતિનું સેલિબ્રેશન કરવા વિનંતી. કબીર વિઝડમમાં પણ અમે કબીર જયંતિનું સેલિબ્રેશન કરીશું, અને એમાં પણ બહુ સુંદર કબીરજીનું એક પદ પર સવિસ્તાર અનુભવી વિચારો રજૂ કરવામાં આવશે. અને તમે ત્યારે પણ તમે તમારા વિચારો પ્રગટ કરી શકો છો, એને આપણે ડિસ્કસ કરીશું. અને સર્વને ફરી પાછું આખો મહિનો કબીર જયંતિ છે, તો કબીરમય થઈ જઈને એક સેલિબ્રેશન પોતપોતાના મનમાં, પોતપોતાની વ્યક્તિગત યાત્રાને થોડી વધારવા, આધ્યાત્મિક તરફ આગળ વધવા એક સમૂહ પ્રાર્થના સાથે હું અહીં વિદાય લઉં છું. આજનો સેશન અહીં બંધ કરીએ છીએ. તો શાંતિ પ્રાર્થના સાથે આપણે વિદાય લઈશું. હરિઓમ. પૂર્ણ એ છે, પૂર્ણ આ છે, પૂર્ણથી તો પૂર્ણ ઉગ્યું છે બધું, પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ આપી દ્યો ભલે, શેષ પાછળ પૂર્ણ રહેવાનું સદા. ઓમ શાંતિ શાંતિ. રામ કબીર સાહેબ બંદગી.